Hello, my viewers. I am your host Nirmal Patel, and today we are going to continue our IELTS Q card series with new Q card. And the Q card is describe a time when you made a promise to someone. Question have been listed here. You can read all the question. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के. The first question is whom you made this promise. तो यहाँ पर सिंपल सा काम करना है आपको कोई एक पर्सन को चूज कर लीजिए जिसे आपने प्रॉमिस दिया था. फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज योर फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स, बट आई विल से बेस्ट ऑप्शन इज अपने पेरेंट्स को ही बता दो. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट द प्रॉमिस वाज. यहाँ पर आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है कि कौन सा टाइम था, कौन सी सिचुएशन थी कि आपको प्रॉमिस देनी पड़ी. ये भी बता दो कि प्रॉमिस क्या थी, उस प्रॉमिस में आपको क्या कंप्लीट करना था या फिर क्या नहीं करना था. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई यू मेड दिस प्रॉमिस. सिंपल सा आंसर दे दो कि ये रीजन थे जिसकी वजह से आई हैव टू मेक दिस प्रॉमिस. फर्स्ट रीजन वाज दिस, सेकंड रीजन वाज दिस. सो दिस वे यू कैन increase the length of your cue card. Also, you can maintain the link in between your sentences. और आपको लिंकर्स यूज करने का बहुत ही मजा आएगा जिसकी वजह से आप अच्छे बैंड गेन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाज द प्रॉमिस इजी टू अचीव. तो इसका आंसर आप दो तरीके से दे सकते हैं. फर्स्ट है कि आप सिंपल सा बोल दीजिए कि यस इट वाज इजी टू अचीव. तो फिर आप वहीं पर आपको टर्मिनेट कर देना पड़ेगा क्यू कार्ड की, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ रहेगा नहीं कि आप क्यू कार्ड को स्ट्रेच कर पाओ या फिर बोल दो कि आपने किस तरह से अपने प्रॉमिस को रखा या फिर कंप्लीट किया. सेकंड वे है कि आप बोल दीजिए कि यस इट वाज टेरिबली हार्ड टू कंप्लीट दैट प्रॉमिस. तो यहाँ पर आपके पास इतना तो कंटेंट बचेगा कि आप 30 सेकंड तक उसको स्ट्रेच कर लेंगे कि ये डिफ़िकल्टी हो गई थी, मुझे ये मटेरियल्स नहीं मिल रहा था या फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी. तो चलिए मूव करते हैं क्यू कार्ड पर. These days, lots of people make promises, but few of them try to complete it. If I talk about myself, then I try to avoid making unnecessary promises. However, on this occasion, I would like to talk about a serious promise that I had given to my parents. Actually, it is all about few months back, amid the lockdown, which was enforced due to the infection risk of COVID-19. As I was in the last semester of my engineering, my parents were concerned about my examination. Due to the tense situation, when I was not able to attend the classes, and another reason was that the lockdown was enforced before I could purchase all the materials and books. That was the time I made a promise to them that I will score more than 9 in last semester so that they can feel relaxed. I had a valid reason for making this promise as they were worried about me all the time. But achieving that promise was the real task. Initially, I felt that it was not a cup of tea for me, but I had to complete it anyhow. So I made a timetable for every subject and I started referring online materials. But I hardly got enough resources. And then I searched on YouTube where I got various videos on my subjects. Of course, it took me more than expected time to learn all the fundamentals. Nevertheless, I did it before my examination. My exam went as I expected, and after a month, I got my results. I kept my promise as I passed my last exam with flying colors. My parents were extremely happy as I scored 9.8. So, this is all about the promise I made to my parents and I completed it. तो यहाँ पर हमारा क्यू कार्ड खत्म होता है. तो चलिए हम फॉलो अप को भी खत्म कर ही देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है जनरली स्पीकिंग डू इंडियन पीपल मेक प्रोमिसेस टू चिल्ड्रन. ये कौन सा क्वेश्चन हो गया. सिंपल सी बात है, इंडियन है तो प्रॉमिस तो करेंगे ही. एंड क्या होता है कि कोई भी पेरेंट्स हो अपने चिल्ड्रन को मनाने के लिए वो प्रॉमिस देगा ही देगा. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. यहाँ पर आपको इतना ही बोलना है कि ये इट्स अ फैक्ट थिंग दैट
parents often give promises to their children. Why? Because children are cranky, and when they want their children to be silent, they give a promise. तो अच्छा भी लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा। एंड इन केस आपको अगर एग्जांपल भी देना है तो यू कैन गिव एग्जांपल दैट दे मेक प्रॉमिस सच एज दे विल बाय देम चॉकलेट्स और टॉयज। सेकंड क्वेश्चन इज, डू चिल्ड्रन आल्सो मेक प्रोमिसेस टू देयर पेरेंट्स? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का कॉपी क्वेश्चन कर दिया है। अगर पेरेंट्स प्रोमिस करेंगे तो चिल्ड्रन थोड़ी बाकी छोड़ेंगे। चिल्ड्रन भी इतनी ही प्रोमिस करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं मस्ती नहीं करूंगा, मैं ये चॉकलेट्स नहीं खाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पर घूमने नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से आप आंसर इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर दीजिए। सिर्फ यहाँ पर आपका एम इतना होना चाहिए कि आपका टास्क अचीवमेंट हो जाना चाहिए, आपका वोकेब्स अच्छा रहना चाहिए, एंड फ्लुएंसी थोड़ी सी रहनी चाहिए, ठीक है? तो फिर आपका बैंड आना ही आना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, डू मोस्ट पीपल फुलफिल देयर प्रोमिसेस? ठीक है, तो फिर थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे इस आंसर को देने के लिए। फर्स्ट है कि आप बोलिए यस एंड देन स्टेट द रीजंस, सेकंड है नो एंड देन स्टेट द रीजंस, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको इन बिटवीन ही छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई विल से actually, it is a matter of individual that how to keep their promises. But I have observed that most of the people try to keep their promises. तो सिंपल सा आंसर बन गया। यहाँ पर आपने ये भी नहीं बोला कि सारे पीपल अपनी प्रॉमिस फुलफिल करते हैं, या फिर ये भी नहीं बोला कि सारे पीपल अपनी प्रॉमिस ब्रेक करते हैं। तो फिर चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ डू यू फील व्हेन अदर्स ब्रेक देयर प्रोमिसेस? तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्यू कार्ड का। सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रॉमिस तोड़ेगा तो फिर अच्छा तो थोड़ी ना लगेगा। इफ आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई विल से आई रियली फील बेड एंड exhausted whenever someone break their promise which they have given to me, because I believe that breaking promise means breaking trust. That's it. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक क्यू कार्ड पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।